Good morning, dear students. First, let's do Brahmanath for concentration. Sabdhan Siddha. Om. Om. Santi, Santi, Santi. Swastha. So, welcome back to all of you again. So, dear students, in our previous class, we had discussed about the various types of economic activities. So, how many types of economic activities are there? I hope all of you go through that video. So, there are how many types of economic activities? There are three types of economic activity. The first type is your business, the second type is your profession, and the third one is your employment. Out of which, in our previous class, we had discussed the first one, that is your business. So, जैसे कि मैंने आप सबको बोला था, you have to remember the definition of business. What is the main motive of the business? The main motive of the business is to earn profit. Profit earn करना business का main motive होता है, main मकसद होता है. Because as we all know, without profit, no business can run. Okay, so that's why the main motive is to earn profit of the business, profit in the business. And also in business, which activities are mostly carried out? Buying and selling of goods. Buying goods को purchase करना, goods को बेचना, वही हमेशा चलता रहता है business में. And also you have to remember at least one definition. That definition is according to L.H. Heney. So I hope you remember that definition. According to L.H. Heney, business may be defined as the human activities directed towards providing or acquiring wealth through buying and selling of goods. Okay. Then also we discuss the most important long question, that is your features of a business. There are nearly about 7 points are there. The first one is your economic activity. The second one is your production or procurement of goods and services. Third one, sale or exchange of goods and services. And also the fourth one, the business, the transaction of the business should be carried out on regular basis. What it suggests regular basis means, in business, an isolated transaction cannot be called as a business. Isolated means a single transaction cannot be called as a business. Business refers to the transactions which are carried out on regular basis. ठीक है, सपोज मेरे पास एक मोबाइल है या फिर एक गाड़ी है, वो गाड़ी को मैंने एक बार बेच दिया, सेल कर दिया. सपोज मान लो मेरा जो गाड़ी है वो उसका कीमत है 50,000 रुपये. तो 50,000 को अगर मैं 60,000 या फिर 70,000 में बेच दिया तो वहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है. नो डाउट मेरा 10,000 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है. बट स्टिल इट कैन बी कॉल्ड एज ए बिजनेस बिकॉज इट इज़ ओनली अकर फॉर वन टाइम. बिजनेस रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर कैरिड आउट रेगुलरली. ठीक है, अगर मैं हमेशा गुड्स को, गाड़ी को परचेस करूँगा फिर उसको बेचूंगा, सेल करूँगा, तो वहाँ पे वो क्या होगा, बिजनेस होगा. एंड ऑल्सो बिजनेस रेफर्स टू वन main motive is to earning profit. There is an uncertainty of return, and also the most important is there is an element of risk in every business. Let us discuss the second one, the second types of economic activity. The second type of economic activity, that is your, the first one is your business, second one is your profession, and then the third one we will discuss that the third one, that is your employment. So dear student, what is profession? प्रोफेशन जो वर्ड है ये तो हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं. प्रोफेशन इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर सम specialized knowledge. ठीक है. So profession refers to an economic activity because profession is a part of economic activity. That's why it refers to an economic activity which requires some specialized knowledge, which requires some
knowledge for earning fee. Okay, so profession is a specialized knowledge which is applied for earning फीस पाने के लिए हम लोग जो काम करते हैं, फीस पाने के लिए प्रोफेशन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, फीस होता है. लेकिन बिजनेस का जो मेन इनकम होता है वो क्या होता था, प्रॉफिट. बिजनेस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, बट व्हाई वी आर डूइंग प्रोफेशन टू अर्न फी. फॉर अर्निंग फीस वी आर डूइंग प्रोफेशन. देन पर्सनलाइज्ड सर्विस. पर्सनलाइज्ड सर्विस मतलब जो आदमी प्रोफेशन है वो ही अपना काम कर पाएगा, ठीक है. बाकी उसके अलावा और कोई दूसरा आदमी वो काम नहीं कर पाएगा. जो प्रोफेशन है, जो प्रोफेशनल है वो ही अपना काम करेगा जाके, ठीक है. देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर अवेलेबल इन केस ऑफ प्रोफेशनल. पर्सनलाइज सर्विस, अपना खुद का सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है. सो जैसे कि यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जितने भी प्रोफेशन है, प्रोफेशन इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज विच इज ऑल्सो इन्वॉल्विंग पर्सनलाइज सर्विस, प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज सर्विस टू द कस्टमर्स इन ऑर्डर टू अर्न फीस पाने के लिए हम लोग जो काम करते हैं. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, किसको हम लोग प्रोफेशन बोल के, प्रोफेशनल बोल के बोलेंगे. जैसे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एसेट्रा, दे आर कॉल्ड द प्रोफेशनल्स. ओके, प्रोफेशनल का एग्जाम्पल क्या होगा, डॉक्टर्स, chartered accountants, advocates, teachers, they all are coming under the professional. Let us understand all these points in detail. Okay, so the first point is, or we can say the features. जैसे हम बिजनेस के फीचर्स पढ़े थे, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. जैसे हम लोग बिजनेस के फीचर्स पढ़े थे उस तरह यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन का क्या क्या फीचर्स होते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज. What does it mean? A specialized knowledge. A specialized knowledge refers to a person must having or acquiring a special knowledge in order to become a professional. जब कब हम लोग एक आदमी को प्रोफेशनल बोल के बोलेंगे, जब उसके पास कोई स्पेशल डिग्री होगा, स्पेशल नॉलेज होगा, तभी जाके हम लोग क्या बोलेंगे, उसको प्रोफेशनल बोल के बोलेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग डॉक्टर्स को प्रोफेशनल बोलते हैं. तो डॉक्टर के पास ऐसा क्या डिग्री है जिसके वजह से हम लोग डॉक्टर को प्रोफेशनल बोलते हैं. बिकॉज इन ऑर्डर टू बिकम ए डॉक्टर द पर्सन मस्ट हैविंग द MBBS डिग्री. सभी आप लोगों को मालूम होगा कि अगर एक आदमी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, MBBS. अगर एक आदमी के पास MBBS का डिग्री है, MBBS का सर्टिफिकेट है, तभी जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक डॉक्टर बोल के बोलेंगे. देन अगर एडवोकेट के बारे में बात करेंगे, सो इन ऑर्डर टू बिकम एन एडवोकेट ए पर्सन मस्ट हैव पास द LLB डिग्री, LLB, ठीक है. सो एडवोकेट भी होने के लिए, वकील बनने के लिए वहाँ पे भी हमको एक सर्टिफिकेट चाहिए. डॉक्टर बनने के लिए वहाँ पे भी हमको MBBS की डिग्री चाहिए. इन ऑर्डर टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो वी नीड ए स्पेशल सर्टिफिकेट. वी हैव टू क्लियर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम. आफ्टर दैट वी कैन बी ऑल्सो बिकम ए प्रोफेशनल. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. वी नीड सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट दैट प्रोफेशन. देन द सेकेंड वन इज योर membership. So membership, ये वाला जो पॉइंट है membership, in order to become a professional, the professionals must become the member of a particular body of association. membership मतलब यहाँ पे किस चीज़ को बोला गया है, it refers to the membership मतलब body of association, ठीक है. सो आफ्टर बिकमिंग ए प्रोफेशनल द प्रोफेशनल्स हैव टू रजिस्टर देयर नेम अंडर एन एसोसिएशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं,
डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर ए पर्सन मस्ट एंटर हिज नेम इन MCI. MCI. MCI stands for, M stands for medical, C stands for council, I stands for India. So MCI stands for Medical Council of India. So after becoming a doctor, the doctors must register themselves under MCI. उसी तरह ये जितने भी एडवोकेट रहते हैं, they also register themselves under a particular association. Their association name BCI, Bar Council of India. BCI, Bar BAR, Bar Council of India. So जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, दे ऑल्सो रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर एन एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, मेंबरशिप. द प्रोफेशनल्स मस्ट हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर ए पर्टिकुलर एसोसिएशन. देन द थर्ड पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट. So code of conduct is the third point. That code of conduct refers to the rules and regulations. Code of conduct means rules and regulations given by the association. That code of conduct means code of conduct given by their association or their body of association. जहाँ पर अभी जैसे कि डॉक्टर्स लोग किसके मेंबर्स है, कौन सा उनका एसोसिएशन है, MCI. MCI means Medical Council of India. So doctors have to obey the rules and regulations given by or the code of conduct given by MCI. उसी तरह जो जितने भी एडवोकेट्स होते हैं, they also obey the rules and regulations given by the BCI, Bar Council of India. Okay, so that refers to the code of conduct means rules and regulation. In every professional there is specific code of conduct given by their specific association. Then the fourth point is fees. So अभी जैसे कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं अपने मतलब शरीर दिखाने के लिए या फिर कोई ट्रीटमेंट के लिए अगर जाते हैं, दे आर डिमांडिंग फी फ्रॉम देयर कस्टमर्स. दे आर नॉट चार्जिंग सैलरी. उनको एक डॉक्टर को हम लोग जाके अपना उनका सैलरी नहीं देते हैं. हम लोग क्या देते हैं, अभी मतलब एक जो बहरमपुर में तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर के पास हम लोग जाएंगे उसका एक स्पेसिफिक फीस होगा, 200, 300, 500, 1000 जितना भी फीस है वो फीस हम लोग उनको देंगे. वी आर नॉट गिविंग सैलरी टू द प्रोफेशनल्स. ओके. उसी तरह जितने भी एडवोकेट हैं, एक एडवोकेट है अगर वो आपका केस लड़ रहा है तो उसका जो फीस है वो फीस हमको देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग क्या करेंगे, लेके उनको उसको सैलरी दे देंगे. ठीक है. सो दे आर डिमांडिंग फी. देन द लास्ट वन, देयर इज अ बैन ऑन एडवर्टाइजिंग. देयर इज अ बैन ऑन एडवर्टाइजिंग ऑन इन केस ऑफ प्रोफेशनल. अगर हम लोग कोई भी प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डॉक्टर, एडवोकेट, उनका मतलब वो लोग अपना एडवर्टाइज नहीं करवा सकते हैं. इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय देयर एसोसिएशन. जैसे कि एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर कभी भी अपना एडवर्टाइज नहीं करवा पाएगा कि मतलब मेरे पास आओ, मैं आपका फ्री में मतलब मैं आपका इलाज ठीक से कर दूंगा. दे कैन नॉट मेक एडवर्टाइजिंग because their code of conduct is strictly prohibited in order to give advertising about their names. Okay. So लेकिन अगर हम लोग मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो कि एडवर्टाइज करके रखे हैं. ठीक है. लेकिन जनरली ये क्या है, प्रोहिबिटेड है. मतलब वो लोग, कोई भी प्रोफेशन का कोई भी आदमी एडवर्टाइज नहीं कर सकता है. ये रूल है. मानते हैं नहीं मानते हैं वो अलग बात है. ठीक है. लेकिन रूल क्या है, देयर इज अ बैन ऑन एडवर्टाइजिंग. So this is all about your profession. The second types of economic activity, that is profession. Profession requires a specialized knowledge. In order to be a professional, the person having special skills, special knowledge, and there is a personalized service. Personalized service मतलब अभी यहाँ पे समझो कि personalized service क्या है. Suppose मान लो एक डॉक्टर है, तो अगर कोई पेशेंट आएगा तो वो डॉक्टर को वो खुद जाके देखेगा या उसका जो भाई होगा, उसका जो बीवी होगा वो भी जाके देखने से हो जाएगा? नहीं ना. सो दैट्स वाई सो पर्सनलाइज सर्विस मतलब डॉक्टर जो है वही जाके पेशेंट को ट्रीट करना पड़ेगा, जो वकील है वही जाके केस को लड़ना पड़ेगा कोर्ट में. सो इट रिक्वायर ए पर्सनलाइज सर्विस. द वेरियस फीचर्स आर ऑल्सो लाइक स्पेशलाइज नॉलेज, मेंबरशिप और एसोसिएशन, बॉडी ऑफ एसोसिएशन, फीस,
code of conduct and bar on advertising. So dear student, this is all about your second type of economic activity, that is profession. You have to go through the notes and remember all the points. Thank you.